اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جائے اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، ان یذکر فلا ینسى وان یطاع فلا یعصى وان یشکر فلا یکفر. اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ تین چیزیں اگر آدمی اختیار کر لے تو گویا کہ وہ تقوی اس طرح اختیار کر رہا ہے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تین چیزیں. اگلا ٹکڑا قابل غور ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. ہماری اختیار میں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر مریں؟ اگر آدمی کے اختیار میں ہو تو ہر آدمی اسلام پر مرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اسلام پر مروں. یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم مرو مسلمان ہو کر مرو. ارے بھائی ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ من عاش علی شیء مات علیہ. جس آدمی کی زندگی جس چیز پر گزری ہوگی اسی کے اوپر اس کی موت ہوگی. یہ قاعدہ ہے. اگر آپ کی زندگی اسلام کے اوپر گزری ہے تو آپ کی موت بھی اسلام کے اوپر ہوگی. زندگی جیسی آپ کی گزری ہے موت بھی اسی طریقے کی ہوگی. من عاش علی شیء مات علیہ. جس کی زندگی جس چیز کے اوپر گزری ہے اسی کے اوپر اس کی موت ہوگی. یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ بتایا گیا. لہذا اگر اسلام کے اوپر مرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام کے اصولوں پر گزاری جائے. ھذا معنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کے بعد فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت غور سے سنیں، متوجہ ہو جائیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ایک ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی. اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ یہ دیکھیں یہاں پر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، اور یہاں ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. دونوں کا معنی سمجھ لیتے ہیں. پہلے وہ سبیل اللہ کا معنی سمجھ لیں، پھر ادھر آتے ہیں. ما معنی سبیل اللہ؟ اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ کیا مطلب؟ اللہ کا راستہ. سبیل کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اللہ کا راستہ. جی اللہ کے راستے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا ہے لہو معنیان، دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ھذا طریق وضعہ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے کو بنایا ہے، یہ مطلب ہے. تو ہوا اللہ کا راستہ، یعنی اللہ نے اس راستے کو بنایا ہے. اچھا، اور دوسرا معنی ہے سبیل اللہ الموصل الی اللہ. یہ راستہ اللہ کا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا راستہ، یہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے. جی اگر اس راستے سے ہٹے تو پھر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا، اب یہ سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا راستہ؟ ممیز کر کے بتائیے، ڈیفرینشیٹ کیجئے، ڈیفرینشیٹ کیجئے. یہاں ڈیفرینشیٹ کیا گیا اس کو. کس کو؟ سبیل اللہ کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا، ممیز کیا گیا. کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبل اللہ کہہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں حبال کثیرہ، دنیا میں بہت ساری رسیاں ہیں، اور ہر آدمی یہ بتا رہا ہے، یہ پکار رہا ہے آؤ اعتصموا بحبلی، میرا راستہ پکڑو، میری رسی پکڑو. ہر آدمی بول رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی رسی پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے.
चिश्ती साहब की रस्सी पकड़ लो, जन्नत पे पहुंच जाओगे। फला शख्सियत है बहुत बड़ी, उसकी रस्सी पकड़ लो, जन्नत पे पहुंच जाओगे। फला बुजुर्ग है, उनकी रस्सी पकड़ लो, जन्नत पे पहुंच जाओगे। फला साहिब कब्र है, उसकी रस्सी पकड़ लो, जन्नत पे पहुंच जाओगे। अल्लाह ने फरमाया फिर दुनिया हिबालुन कसीरा, दुनिया में रस्सियां बहुत हैं, ये सारी रस्सियां जन्नत तक नहीं ले जाती हैं। सिर्फ एक ही रस्सी है जो अल्लाह तक ले जाती है, वो अल्लाह की रस्सी है। हब्लुल्लाह मुमय्यज कर दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया, अल्लाह की रस्सी। और अल्लाह की रस्सी कौन सी रस्सी है जी? रसूल ने उसकी तशरीह करके बताया कि ये कुरान है जी। तरफुहु बियदीकुम व तरफुहु बियदिल्लाह, तरफुहु बियदिल्लाह व तरफुहु बियदीकुम, ये रस्सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी कैसी होती है? एक रस्सी ये अल्लाह के हाथ में है, एक किनारा, एक रस्सी के दो किनारे हैं। तरफुहु बियदिल्लाह, उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, तरफुहु बियदिल्लाह, व तरफुहु बियदीकुम, और एक किनारा तुम्हारे हाथ में है। तो जिसका दूसरा किनारा अल्लाह के हाथ में हो वही रस्सी हब्लुल्लाह है, वही अल्लाह की रस्सी है, जिसे हदीस में बयान किया गया है। जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, यह रस्सी है। और आपको मालूम है, वो तो एक बच्चा भी बता देगा हब्लुल्लाह क्या है। मसलन कोई फिसलवा रास्ता हो, कोई तरीक़ुन ज़लीक़ हो, कोई फिसलवा रास्ता हो जिस पर आदमी फिसल जाता हो, अब वहां तक जाना है चढ़ करके और रास्ता फिसलवा है, क्या करेंगे आप? किनारे जो है एक रस्सी बांध दें और रस्सी को जहां आपको पहुंचना है वहां किसी चीज से बांध दें, और फिर इस रस्सी को जो आपकी तरफ है उसके सिरे को पकड़ लें और पकड़ते पकड़ते आप मंजिल तक पहुंच जाएं। देखिए, वो जो जगह है जहां पर वो रस्सी का सिरा बंधा हुआ है, जरूरी है कि वो वहां बंधा रहना चाहिए, वरना आप गिर जाएंगे। और दूसरे, आप अगर छोड़ देंगे तब भी गिर जाएंगे, अगर बंधा हुआ ना हो तब भी गिर जाएंगे आप। और अगर आपके हाथ में ना हो तब भी आप फिसल जाएंगे। जरूरी यह है कि पहले बांधें उसको और उसके बाद फिर आप इसको मजबूती से पकड़ें। अच्छा, एहतिसाम कहा गया, सिर्फ पकड़ना नहीं कहा गया। एहतिसाम का मतलब मजबूती से थामना, हल्के पकड़ोगे फिसल जाओगे। तो एहतिसाम का मतलब तमस्सुक, मजबूती से पकड़ना। अगर रस्सी को आपने ढीला पकड़ा गिर जाएंगे आप। रस्सी को मजबूती से पकड़ो और पहले वहां बांधो। इसका मतलब यह है कि वो सिरा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, और एक सिरा आपके हाथ में है। यह रस्सी कुरान हकीम है, एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। तो अब इसको मजबूती से पकड़ो, ढीला पकड़ोगे तो फिसल जाओगे। और ये रस्सी पकड़ करके आप अल्लाह तक पहुंच जाएं, इसलिए कि तरफुहु बियदीकुम व तरफुहु बियदिल्लाह, उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में और एक किनारा तुम्हारे हाथ में। हादा हब्लुल्लाह। और दुनिया की जितनी भी रस्सियां हैं ये मंजिल तक नहीं ले जाती हैं, सारी की सारी रस्सियां मंजिल से आदमी को दूर कर देती हैं। दुनिया के तमाम लोग अपनी अपनी रस्सियों की तरफ बुला रहे हैं, ये रस्सियां अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती आपको, इसलिए कि कुरान भी इसके खिलाफ है और हदीस भी इसके खिलाफ है। तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे हब्लुल्लाह की। कोई बताए सबीलुल्लाह क्या है तो आप बताएंगे हब्लुल्लाह। अच्छा, हब्लुल्लाह अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की रस्सी है। अच्छा, ये रस्सी कैसी है? हदीस में बताया गया उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और एक किनारा तुम्हारे हाथ में। मजबूती से पकड़ो ना फिसल जाओगे। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, और एक आदमी नहीं, सब मिल करके, सबसे कहा जा रहा है। हाँ, ये नहीं कि फलां साहब पकड़ ले, फलां साहब पकड़ ले, फलां, तुम सब, ऑल ऑफ यू, जमीअन, ऑल ऑफ यू, नथिंग एक्सेप्शन। कोई भी यहां पर इस्तिस्ना नहीं है, बल्कि सब मिलकर के पकड़ो। और वला तफर्रकू। अब देखो, नुक्ता यह है कि अगर अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लें, नुक्ते इज्तिमा और नुक्ते इत्तिहाद, नुक्ते एतिसाम अगर
इक्वल हो जाए, एक हो जाए, तो वला तफर्रकू, फिरका बंदी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो फिरकों में बटे हुए हैं, बुनियादी वजह यह है कि हम नुक्ते इज्तिमा कुरान और सुन्नत के ऊपर जमे हुए नहीं है। अच्छा, सुन्नत कहां से लाए आप? यहां तो रस्सी कही जा रही है। देखो रस्सी कैसे होती है, रस्सी की दो लड़ियां होती हैं, ऐसे होती है। रस्सी कैसे बटी जाती है? ऐसे होती है। ऐसे होती है रस्सी, ये रस्सी होती है, ये इसकी दो लड़ियां होती हैं। ये कुरान है, ये सुन्नत है। एक टेक्स्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन है, एक मतन है, एक शरह है। इसकी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। मतन अपनी शरह से और शरह अपनी मतन से कभी जुदा नहीं होती। रस्सी दो लड़ियों का नाम है, लिहाजा रिसालतुल कुरान व रिसालतुल हदीस किलाहुमा सियान, दोनों के दोनों बराबर हैं जी, दोनों बराबर हैं। तो अब कुरान और सुन्नत को नुक्ता इज्तिमा बना लो कि यहीं पर सबको आ जाना है, जमीयन, ऑल ऑफ यू इधर आ जाओ, वला तफर्रकू, इख्तिलाफ फौरन खत्म। गोया कि मुसलमान खुद इख्तिलाफ को खत्म नहीं करना चाह रहे। क्यों? इसलिए कि वो नुक्ते इज्तिमा कुरान हकीम और सुन्नत के ऊपर नहीं आना चाह रहे। इस नुक्ते पर कोई आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अलग अलग रस्सियां बना रखी हैं। ये वजह है, ये गुमराही की वजह, ये तफर्रुक की वजह है। और जहां तफरका आ जाए वहां पर जानते क्या हालत होती है उस कौम की? वही हालत होती है जो हदीस में बताई गई है कि जैसे दस्तरखान लगा हुआ हो, किस्म किस्म के खाने हों और पूरी दुनिया उस खाने के ऊपर टूट पड़े। यही हालत इस उम्मत का है। क्यों? इसलिए कि नुक्ते इज्तिमा से हट गई हो। बहुत बड़ा कानून बताया गया है। ये कानून है, ये एतिसाम बिहब्लिल्लाह जमीया, ऑल ऑफ यू, कोई भी इधर उधर न जाए, नुक्ते इज्तिमा पर जमा हो जाओ, वला तफर्रकू, तफरका फौरन खत्म। इसका मतलब खुद उम्मत मुस्लिमा इस तफरके को खत्म नहीं करना चाह रही है। क्यों? इसलिए कि उनके पास अलग अलग रस्सियां हैं। ये रस्सियां कहां से आई? किसने बनाई इन रस्सियों को? रस्सी तो एक ही है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, हब्लुल्लाह। और हब्लुल्लाह क्या है? जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और जिसका एक सिरा बंदों के हाथ में है, और वो कुरान और सुन्नत है, वो दोनों, यह है हब्लुल्लाह। तुमने अलग अलग रस्सियां बना रखी हैं और अलग अलग रस्सियों की तरफ बुला रहे हो। नुक्ता इज्तिमा तो तुमने खुद खत्म कर दिया वहां, तो पिटोगे नहीं। दुनिया में तुम्हारी बर्बादी की वाहिद वजह यही है कि तुमने नुक्ता इज्तिमा को छोड़ दिया, वहां से तुम हट गए हो। तुम वो नुक्ते को, पॉइंट को तुमने छोड़ दिया है, उसका जो न्यू के लिए से वहां से हट गए हो तुम। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाहु अकबर। हाँ, अच्छा एक नुक्ता और बताया जा रहा, बड़ा अजीब गरीब, कि ठीक है हमारी रस्सी अलग है, हमारी रस्सी अलग है, हमारी रस्सी अलग है। यह बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं कुरान हकीम की, ये इस टुकड़े की रोशनी में बहुत अजीब गरीब बात है, शायद आपने कहीं सुना ना हो। मैं अपनी रस्सी पकड़े हुए हूं, भाई तुम अपनी रस्सी पकड़े रहो। ए भाई तुम अपनी रस्सी पकड़ो, ए भैया तुम अपनी रस्सी पकड़े रहो, तमाम लोग अपनी अपनी रस्सी पकड़े रहो और फिर जमा हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं होता, ये तो तुम बदन जमा है, कल्ब जमा नहीं है जी। और नुक्ता इत्तिहाद के लिए बदन का जमा होना काफी नहीं है, बल्कि दिल का जमा होना काफी है, जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे बदनों को नहीं, तुम्हारे दिलों को उसने जमा कर दिया है। अल्लाहु अकबर। गोया कि तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम सब बदन के एतबार से दिखाई देते हो कि इकट्ठे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिल तो मुख्तलिफ है ना। तब जब दिल मुख्तलिफ है तो इत्तिहाद नहीं होता जी। अगर बदन जमा हो जाए तो इत्तिहाद नहीं होता। हकीकी इत्तिहाद के लिए जरूरी है कि कुलूब जमा हों। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूब, हाज़ी नुक़्ततुन अज़ीमा, ये बहुत अजीब व गरीब नुक्ता है। सब अपने अपने मसलक पर डटे रहो, सब अपनी अपनी रस्सियां पकड़े रहो और कहो हम सब मुसलमान हैं, और अब क्या करते हैं, हम सब मुत्तहिद हो जाते हैं। ला 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 ला, असल इत्तिहाद बदन का नहीं, असल इत्तिहाद कुलूब का होता है, दिल जमा हो जाएं। तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, मुनाफिकीन ने कहा था यहूदियों से हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अल्लाह ने फरमाया तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम इनके बदन को जमा देख रहे हो, लेकिन इनके दोनों के दिल अलग अलग हैं। यहूदियों का मसलक अलग है और मुनाफिकीन का मसलक अलग है। बज़ाहिर ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर एक दूसरे के साथ देने से गुरेज करेंगे, भाग जाएंगे। ये कितनी अजीब व गरीब हकीकत बयान की गई है। अल्लाह
اور یہ اختلاف کتنا خطرناک ہے، اس کی شناعت اور قباحت، اس کی خطرناکی کی طرف اشارہ کیا گیا. کیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. شفا اے حرف اے طرف، تم آگ کے کنارے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور آگ کے اس کنارے سے تمہیں کھینچ لیا. آگ کے کنارے پر ہونے کا مطلب ہے کہ تم گرنے والے تھے. You have to fall down. گرنے ہی والے تھے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھینچ لیا. You were going to fall down. جانے والے تھے نا آپ، گرنے والے تھے اس میں، اور اللہ نے آپ کو کھینچ لیا. تو یہ جو آگ کا کنارہ کہا ہے، آگ سے کیوں تشبیہ دی اختلاف کو؟ کہتے ہیں کہ اگر چوری ہو جائے تو گھر میں کچھ بچ جاتا ہے، کوئی اور چیز، کوئی اور حادثہ ہو جائے چیزیں بچ جاتی ہیں، لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے. جی یہ اختلاف کچھ نہیں چھوڑتا ہے، سب تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. یہ آگ کی طرح ہے، یہ آگ کی طرح کچھ چھوڑتا نہیں ہے. کہیں آگ لگی تھی نا ابھی، سرکشوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اس آگ نے. لہذا آدمی کو نازا نہیں ہونا چاہیے. جی بڑے بڑے ہیروز کہاں کے، ہالی ووڈ کے ہیرو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں بیچارے. جی دے دے بابا اللہ کے نام پہ، یا حال ہے. جی جی سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے، مٹاتے دیر نہیں لگتی، ڈھیل دیتا ہے. ابھی قانون آگے آ رہا ہے وہ